So, today we will do our chapter 3 agriculture, industry and trade from 1950 to 1990 period कि कुछ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स मतलब कौन से एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स थे इस पर्टिकुलर पीरियड में। तो सबसे पहले हेडिंग डालो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स ये हेडिंग है ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम लिख लिया। ओके बच्चा करो। चलो अब इसमें फर्स्ट इसकी सब हेडिंग डालो लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स फर्स्ट लिखो लैंड इज ट्रीटेड एज, लैंड इज ट्रीटेड एज one of the most important factor, one of the most important factor which affects, which affects the agricultural productivity, the agricultural productivity because because if land, if land is unavailable, is unavailable, then the further production is not possible, then the further production is not possible। लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 19, during the period of 1950 to 1990, during the period of 1950 to 1990 many reforms, many reforms were introduced, were introduced for the effective, for the effective growth and production, growth and production in a company, नहीं in a country, in a country। ये कौन सा नंबर का पॉइंट था? ठीक है थर्ड लिखो before that period, before that period intermediaries, intermediaries plays a very crucial role, plays a very crucial role, but after, but after, but after afterwards but afterwards they were, they were
totally removed, totally removed, because because they are the only persons, they are the only persons who increases the cost of, who increases the cost of the product, the product. Full stop. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. In agricultural sense, in agricultural sense, zamindars, zamindars acts as the, acts as the intermediaries, intermediaries, because because on their field, on their field, a large number of, a large number of people work at a very small amount of money, at a very small amount of money. Full stop. But they were removed, but they were removed after such reforms, after such reforms, by by transferring the, transferring the rights, rights directly in the hands of, directly in the hands of the person who cultivates the crop, person who cultivates the crop. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. This leads, this leads a very positive impact, a very positive impact this leads a very positive impact because all the exploitation done by the zamindars, by the zamindars. सुन रहे हो बच्चा? सुन. मैंने कहा इतनी शांति है तो चलो एक्चुअल में आवाज वो ही कट जाए मीटिंग में. क्या बोला था लास्ट मैंने? were removed, were removed because, because
The direct purchase, the direct purchase was done, was done from the person who produced the goods. From the person who produced the goods. नेक्स्ट पॉइंट, कितने कौन सा पॉइंट है ये जो अब लिखेंगे हम? अच्छा, अब नेक्स्ट लिखो, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स were also were also reduced reduced to a great extent, to a great extent. नेक्स्ट लिखो, by abolishing by abolishing the zamindars from the production from the production nearly nearly 200 lakh, 200 लिख के LAKH, 200 lakh of the persons got their own job, got their own job. बस, चलो पहले तो अभी एक पॉइंट है ना, नेक्स्ट पॉइंट की हेडिंग डाल लो। कोऑपरेटिव फार्मिंग, हेडिंग डालो कोऑपरेटिव फार्मिंग। हाँ, हाँ, खैर मैंने इसे हेडिंग वाइज बना लिखवाया नहीं, लेकिन आपको लिखना है तो लिख लो, वरना उसी में कंटिन्यू कर लो। चलो लिख लो, वो वाला फर्स्ट पॉइंट हेडिंग डाल दो, एबॉलिशिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज। जो अभी तक हमने पॉइंट लिखा था उसको ही एक हेडिंग डाल दो, एबॉलिशिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज। और इस वाले की हेडिंग डाल लो जो अब हमने लिख रहे हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग। बोलो, इसमें लिखो कोऑपरेटिव फार्मिंग, फर्स्ट पॉइंट है इसका, कोऑपरेटिव फार्मिंग is one of the land reform land reform introduced by the introduced during that period, introduced during that period, full stop। फिर लिखो, it is well said that it is well said that
work done work done in a group always leads to always leads to the better result. The better result. Full stop. Next point. Cooperative farming. Cooperative farming is also one of those practice. Is also one of those practice. Full stop. In this, in this, two, two or more than two and more than two farmers come and collaborate together. Farmers come and collaborate together in order to do in order to do the farming full stop. Next point. it it is beneficial it is beneficial because because individually individually every farmer is not able to is not able to buy the costly products buy the costly products and and inputs, but collectively he can be able to he can be able to collectively he can be able to buy the goods buy the goods of their choice बस अब मेरी बात सुन लो नोट्स तो कंप्लीट हो गए ना अब मेरी बात सुनो एग्रीकल्चर कल भी मैंने आपको बताया था हमारी इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है मतलब हमारी इंडिया की इकोनॉमी काफी हद तक एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होती है बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर के आदी होते हैं एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं क्या रीजन होता है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होने का बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट महंगी नहीं होती अच्छा होती तो है उसके अलावा क्या मतलब रीजन है एग्रीकल्चर की पॉपुलैरिटी का हाँ हाँ मेन यही है इसमें कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर नहीं होती आप स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो कुछ आता है नहीं आता कोई टेस्ट नहीं होता कोई एंट्रेंस नहीं होता कोई स्किल्स नहीं देखे जाते जब जिसका मन हो वो अपनी फार्मिंग कर लेता है अब जहाँ पे इंडिया में इतनी ज्यादा फार्मिंग की वैल्यू है इतनी ज्यादा एग्रीकल्चर की वैल्यू है तो ये बहुत नेसेसरी है कि उससे रिलेटेड रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स पता होने चाहिए रिफॉर्म्स आए
हमेशा समय पर समय हमारी गवर्नमेंट करती रहती है स्कीम चेंज। अभी जो किसान आंदोलन था, वो मतलब किसान आंदोलन था, अब किसान उसे सही से समझे नहीं, लेकिन शायद था वो भी किसानों के बेनिफिट के लिए। तो लेकिन मैं कह रही हूँ कि जो हमारी फार्म कंट्री की गवर्नमेंट फार्मिंग के लिए हमेशा कोई ना कोई पॉलिसीज बनाती रहती है, क्योंकि फार्मिंग हमारी इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। अब इसी के साथ साथ अब हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें मतलब है 1950 से लेकर 19 तब तक 1950 से लेकर 1990 तक के रिफॉर्म्स में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, तो तब भी बहुत ज्यादा अच्छे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए थे। आज हमने दो रिफॉर्म्स करे हैं, एक एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज और दूसरा कोऑपरेटिव फार्मिंग। इंटरमीडिएटरीज कौन होते हैं ईशा? इंटरमीडिएटरीज कौन होते हैं? वैसे तो अगर हम बात करें और गुड्स की, मतलब अगर हम एग्रीकल्चर की बात ना करें, तो वैसे तो इंटरमीडिएटरीज का मतलब होता है बीच के लोग, जैसे हमारे होते हैं कि प्रोड्यूसर ने गुड्स को प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूसर के गुड्स के बाद जो हमारे एजेंट्स होते हैं या जो हमारे वर्कर्स हो गए, ये सारे लोग इंक्लूड होते हैं, फिर जाके हमारे होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए, फिर जाके हमारे गुड्स फाइनल कंज्यूमर के पास आते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं होता। एग्रीकल्चर के सेंस में अगर हम बात करें, तो एग्रीकल्चर के सेंस में हमारी इसका मतलब होता है, क्या नाम है इसका, एग्रीकल्चर के सेंस में हमारा जो कह सकते हैं इंटरमीडिएटरीज होते हैं जमींदार, मतलब जमींदार वो लोग होते हैं जिनके पास सिर्फ पैसा होता है और कुछ नहीं होता, कोई मेहनत नहीं होती, कोई स्किल्स नहीं होती, मेहनत सारी करते हैं ओन वर्कर्स, और ये अपना सिर्फ पैसा कमाते हैं, वो भी मुफ्त का पैसा। इनका क्या काम होता है, इनके पास सिर्फ इनकी जीत ही होती है कि इनके पास बहुत सारा पैसा होता है, और ये अपने पैसे को सेव करते हुए, मतलब ये लोगों को हायर करते हैं, उनको बहुत कम उनकी लागत के पैसे देते हैं और सारे पैसे अपने पास रख लेते हैं, और गुड्स भी हायर में सेल करते हैं। तो जब हमारे रिफॉर्म्स शुरू हुए, तो ये जो इंटरमीडिएसी इनको रिमूव करा गया, इनको हटाया गया, जमींदार को हटाया गया। अगर सपोज को आपके किसी फ्रेंड को कोई चीज खरीदनी है मेरे से, पहली बात, अगर मैं ही गुड्स प्रोड्यूस करूं, मैं अपना प्रॉफिट रखूंगी, आप उसके बीच में आप अपना प्रॉफिट रखोगे, फिर उसको आपने गुड्स दिए, अगर उससे आगे उसे बेचना होगा, वो अपना प्रॉफिट रखेगी। तो अगर 5 रुपए की चीज चलती हुई आई, तो लास्ट तक आते आते वो 25 की हो जाएगी, चीज तो 5 की है, 20 रुपए उसके बीच वाले जो कहते हैं ना इंटरमीडिएट से, उन्होंने रख लिया। उनकी भी गलती नहीं, अगर वो ये काम करे तो वो ये करेगी ही करेगी। तो लेकिन 1950 से 1990 तक इन इंटरमीडिएटरीज को हटाया गया, इन्हें रिमूव करा गया, और रिमूव करने के बाद जो गुड्स डायरेक्टली गवर्नमेंट उन लोगों से खरीदने लगी जो लोगों ने प्रोड्यूस करते थे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, उनके पास तो जमीन ही नहीं होती थी, तब तो जमींदार के पास आते थे। हाउ कुड इट बी पॉसिबल? ये पॉसिबल कैसे हुए? पॉसिबल ऐसे हुआ, अगर जितने भी हमारे जो वर्कर्स थे, हाँ, मतलब जितने भी हमारे वर्कर्स थे जो दूसरों के फील्ड में जाके काम करते थे, गवर्नमेंट ने उन्हें अपनी लैंड खरीदवा के दी, लैंड रिफॉर्म्स में सस्ती लैंड प्रोवाइड की, उन्हें अपनी लैंड प्रोवाइड की, ताकि तुम जब दूसरों की लैंड पे जाके काम करो, तो तुम अपनी लैंड पे खुद क्रॉप कर ग्रो कर लो, और वो गवर्नमेंट को भी फायदा, कॉमन मैन को भी फायदा, उनको भी फायदा, सिर्फ एक जमींदार को फायदा नहीं था, बाकी सबको फायदा था। और जमींदार को हटाने के बाद इतना रिफॉर्म आया हमारी कंट्री में, जो 200 लाख पीपल है, या आप अपने फिगर को याद रख लीजिएगा, जो हमारे 200 लाख पीपल है, उनको, वो जो हमारे इंटरमीडिएटरीज थे, उनके हटने के बाद उनको डायरेक्टली अपनी लैंड मिल गई, और उनकी जितनी भी सारी प्रॉब्लम थी, लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम, वो दूर हो गई। और इसके बाद जो एक्सप्लॉयटेशन, जो लड़ाई झगड़े, जो धांधले जमींदार मचाते थे, वो भी हट गया, और कल्टीवेटर्स ने काफी इंप्रूवमेंट करते हुए अपने लैंड के ओनर बने, और काफी अपना इंप्रूवमेंट किया, जिससे हमारा ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर काफी डेवलप हुआ 1950 से 1990 तक। फर्स्ट पॉइंट समझ गए? ओके बच्चा, नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव आपको नाम से क्या लग रहा है? कोऑपरेटिव वर्ड आपको नाम से क्या लग रहा है? व्हाट इज द वर्ड कोऑपरेटिव मीन? कोऑपरेटिव कलेक्टिवली काम करना। इसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा, दो तो मिनिमम होने चाहिए, एक होगा तो इंडिविजुअल नहीं हो जाएगा।
दो या दो से ज्यादा लोग आके अपनी फार्मिंग को एक साथ करे, एक ही पीस ऑफ लैंड पे करे। जो थोड़ा बहुत एक के पास पैसा वो लगा दे, जो थोड़ा बहुत दूसरे के पास पैसा है वो लगा दे, और सब मिलके अपने कलेक्टिवली वर्क को कैरी फॉरवर्ड कर ले। वो होता है हमारा कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग की प्रैक्टिस को बढ़ावा दिया गया। कोऑपरेटिव फार्मिंग को स्पेशली स्मॉल होल्डर्स जो इतने बड़े जमींदार नहीं थे, उनके लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग को मतलब इंट्रोड्यूस किया गया। इसका मेजर मोटिव ये था कि जो आप एक अकेला बंदा नहीं कर सकता, एक से भले दो, और वो आपका दिमाग भी दो होगा, वैल्यू भी दो होगी, पावर भी दो होगी, पैसा भी दो होगा, वो एक नहीं कर सकता। कोई एक मशीन एक बंदा नहीं खरीद सकता, दोनों ने मिलके एक साथ खरीदनी। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग भी इंट्रोड्यूस करवाया था 1950 से 1990 तक, और इसका मेजर मोटिव था कि आपकी जो भी ग्रुप्स हैं, मतलब आप जितना भी काम करो, आप साथ मिलके काम करो, यूनिटी में काम करो, एकता में काम करो, क्योंकि एकता में शक्ति होती है। और अगर आप एक साथ काम करोगे, पार्टनरशिप वाली बात है, पार्टनरशिप के बेनिफिट्स इसमें आप लिख सकते हो। अगर आप एक साथ एक फील्ड पे काम करोगे तो आपके जो बायसनेस है वो भी रिमूव होगी, आपकी इंटेलिजेंस पावर इंक्रीज होगी, इंटेलेक्चुअल स्किल्स इंक्रीज होगी, आप प्रोडक्शन ज्यादा लो रेट पे कर पाओगे, आप अपना फंड ज्यादा अरेंज कर पाओगे, और आप अपने प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करोगे। समझ गए? मुझे बताओ कि हमारे लैंड रिफॉर्म्स में जो फर्स्ट पॉइंट था, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, वो क्या होते हैं? आप बताओ। वेरी गुड। और फटाफट कोऑपरेटिव फार्मिंग में बता दो क्या होता है। ठीक है, तो मतलब आज के दो पॉइंट समझ आ गए? Okay, so that's all for today in your economics class.